Hello friends, myself Neeraj Sharma and I welcome to all of you in my YouTube channel, my digital school. So today we will start or we will discuss about model study. So as you see here on the whiteboard that we today we will discuss about must, should, ought to, used to, need and here. In the previous video that we have discussed about other modals can, would, may, might and will, shall and could. So but before we start I would like to request you please subscribe our channel and also press the bell icon and like and share, and also I request you please comment how would you like this video and okay, so let's start model study. So must, today we will discuss about must. Must is used to show obligation, order, command, surety, certainty, compulsion, necessity, duty, determination, prohibition and forbidden. Okay, obligation यानी जो काम आप करने के लिए मजबूर हैं, जो बाध्य है. Okay, and the order you have to follow. Okay, and command also means order. तो command मतलब की order और surety and certainty यानी जिस चीज के बारे में आप sure है, निश्चित है. Okay, compulsion जो चीज आपके लिए अनिवार्य है, जरूरी है. And necessity यानी आवश्यकता, और जिस चीज की आपको आवश्यकता है, जरूरत है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं. And duty के लिए भी must का यूज किया जाता है. Determination यानी पक्का इरादा. Okay, तो इसके लिए हम must का यूज करते हैं. Prohibition and forbidden means प्रतिबंध, यानी जिस चीज पर प्रतिबंध है, जो चीज आप या जो काम आप नहीं करेंगे. ओके, तो उसके लिए हम must का यूज करते हैं. But must is used as must not here for prohibition, and in short that we use mustn't. Okay, it is called mustn't. So इसको mustn't कहा जाता है. तो इसके लिए prohibition और forbidden जब यहाँ पर इस सेंटेंस में ये शो होता है तो उसके लिए must not apply किया जाता है. So obligation यानी जो बातें हैं, जिस काम को करने के लिए आप मजबूर हैं, just as you must go there. ओके, तो अब यहाँ पर must go there. अब इसमें obligation भी है कि आपको जाना पड़ेगा, और order भी है, command भी है. तो इस सेंटेंस में तीनों चीजें शो होती हैं. You must go there. Surely, you must be at home. कि वो अवश्य ही घर पर होगा. तो अब यहाँ पर श्योरिटी और सर्टेनिटी इस सेंटेंस में इस एग्जांपल के अंदर शो हो रही है. ओके, एंड नेक्स्ट इज कंपल्शन एंड नेसेसिटी. जस्ट एज वी मस्ट ईट फूड टू लिव. वी मस्ट ईट फूड यानी हमें खाना पड़ता है. दैट इज आवर नेसेसिटी एंड इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ अस. तो हम सब के लिए कंपल्सरी है कि हमें जीने के लिए खाना पड़ता है. एंड ड्यूटी, सो ड्यूटी, टू शो ड्यूटी दैट वी आल्सो यूज मस्ट. जस्ट एज वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स. तो हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. That is our duty. And determination, just as I must be there. मैं निश्चित रूप से वहाँ होगा. Determination. Okay. Prohibition and forbidden, just as you mustn't park your car here. Mustn't park your car here. कि आप यहाँ पर अपनी कार खड़ी पार्क नहीं करेंगे या नहीं करेंगे. So that must shows and must is used for obligation, order, command, surety, certainty, compulsion, necessity, duty. तो इन सब चीजों के लिए हम must का यूज करते हैं. But is used in present. Okay. तो present के अंदर must का यूज किया जाता है. लेकिन एक और चीज है जो हम यूज करते हैं, and we have mostly all of us know or read about
that thing. So must का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में have to का यूज होता है जो must को शो करता है. Must and have to are equal. तो यानी ये इक्वल है. प्रेजेंट में हम have to का भी यूज कर सकते हैं. But the basic difference that what is the basic difference of must and have to, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाता है कि कहाँ पर must का यूज करना है और कहाँ have to का यूज होगा. And probably that we mistakenly use must or have to, और यानी normally हम गलती से यूज कर लेते हैं. Those that we don't have the proper knowledge that where we use must or where we have to use have to, कि हमें कहाँ करना है. तो have to shows what and must shows what. And what is the basic difference? The basic difference is that must का यूज हम वहाँ करेंगे जब other authority gives us any order, command. Okay, कि जब कोई दूसरी अथॉरिटी हमें कोई ऑर्डर देती है, just as we must follow. अभी हमने ये एग्जांपल का we must follow traffic रूल्स, कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. तो ये जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ता है बिकॉज दैट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस बट दैट इज द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटी. तो ये अथॉरिटी का ऑर्डर है. ओके, जस्ट एज अब आपको अपना काम खुद करना है तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे आई मस्ट डू माई वर्क. तो आपको लिखना पड़ेगा आई हैव टू डू माई वर्क. मुझे अपना काम करना पड़ता है. इसमें भी सेम जो कंडीशंस है जो मस्ट के अंदर अप्लाई होते हैं वो इसमें अप्लाई होते हैं. बट द डिफरेंस इज दैट कि ये काम आपका खुद का है. तो जब आपको खुद आप अपना काम को करने के लिए मजबूर हैं तो वहां पर हम हैव टू का यूज करेंगे. यहाँ पर अगर आप मस्ट यूज करोगे दैट इट विल बी रॉन्ग, और यहाँ पर अगर आप हैव टू यूज करोगे दैट इट विल बी आल्सो रॉन्ग. मस्ट विल बी राइट बिकॉज़ क्योंकि मस्ट और हैव टू में बेसिक डिफरेंस यही है कि मस्ट हम वहां यूज करते हैं जब कोई अदर अथॉरिटी हमें वो काम करने के लिए ऑर्डर देती है, कमांड देती है, या वो अदर अथॉरिटी के द्वारा जो है नेसेसरी होता है. ओके, तो और जो काम हम खुद कर रहे हैं हमारे लिए करना जरूरी है वहां पर हम हैव टू का यूज करेंगे. ओके, सो द नेक्स्ट एंड मस्ट का जो पास्ट है व्हाट इज पास्ट ऑफ मस्ट. अगर हमने मस्ट को पास्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो हम क्या यूज करेंगे? हैड टू. ओके, सो जस्ट एज वी हैड टू पे टैक्स व्हेन वी वर इन USA. ओके, वी हैड पे टैक्स देना पड़ता था जब हम यूएस में थे. सो दैट दिस सेंटेंस इंडिकेट दैट दिस सेंटेंस इज इन पास्ट. तो यानी ये जो वर्ब है ये इंडिकेट करता है कि पास्ट है. तो हम पास्ट में मस्ट का यूज नहीं करेंगे, तो मस्ट की जगह पर हम यूज करेंगे हैड टू का. ओके, सो नेक्स्ट इज शुड. नेक्स्ट है हम शुड को डिस्कस कर रहे हैं. शुड indicate or shows or express or use to show advice, suggestion and moral duty. Okay, so advice and suggestion, just as doctor advised you that you should take this medicine twice a day. अब डॉक्टर आपको सजेस्ट ही करता है कि आपको ये दवाई, ये मेडिसिन जो है दिन में 2 बार लेनी चाहिए. तो should means चाहिए. When you advise someone, कि जब आप किसी को एडवाइस देते हैं तो आप ये कहते हैं कि तुझे ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए. तो should यानी चाहिए. तो यानी should का मीन जो वर्बल मीन है वो चाहिए नहीं
डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड मॉरल ड्यूटी की अगर हम बात करें तो ड्यूटी और मॉरल ड्यूटी में डिफरेंस क्या है? तो मॉरल ड्यूटी क्या होती है? मॉरल ड्यूटी होती है नैतिक कर्तव्य। अगर हम हिंदी स्टूडेंट से पूछे कि नैतिक मींस क्या होता है तो दे डोंट नो, उनको पता ही नहीं है नैतिक मींस क्या होता है। सो ड्यूटी एंड मॉरल ड्यूटी द बेसिक डिफरेंस तो हम कहां यूज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ड्यूटी है या मॉरल ड्यूटी है? मॉरल ड्यूटी व्हिच गिव्स नो पनिशमेंट, वो हमारी मॉरल ड्यूटी है, उसके लिए हम शुड का यूज करेंगे। लेकिन जहां पर हमें पनिशमेंट या फाइन देना पड़ता है जो हमारी ड्यूटी है, अगर हम उसको नहीं करते हैं तो उसके लिए मस्ट का यूज होगा यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो ये यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, दैट इज आवर मॉरल ड्यूटी। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, एंड व्हाट इज ड्यूटी? जस्ट एज वी मस्ट पे टैक्सेस, हमें अपने टैक्स पे करने चाहिए या पढ़ते हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें करने चाहिए। ओके, सो मस्ट का यूज हो रहा है, हमें अपना टैक्स, ये हमारी ड्यूटी बनती है अपने देश के प्रति, दैट इट इज आवर ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन दैट वी हैव टू और वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, कि हमें अपने टैक्सेस को पे करना चाहिए। तो दैट इज, अगर नहीं करेंगे so everyone knows that what would happen, कि अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगी, फाइन लगेगा। so that is the difference between duty and moral duty. The should is used to show advice, suggestion and also moral duty. So next is ought to. Ought to is just the same of must. Ought to और must same है, but it is less stronger than must. लेकिन ought to जो है वो less stronger है must से, but it is more strong, less strong than must and more stronger than should. तो should से ज्यादा strong है, just as you are to, हम इस सेंटेंस को यूं लिख सकते हैं, you are to respect your parents, कि आपको अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, so next is used to. Used to, where we use used to. Used to is used in past tense. In past, so used to is used in past to show the action that has been frequently or oftenly done. So जो काम frequent यानी अक्सर, frequent और often नहीं अक्सर होता था, but कब होता था? In the past. Just as I used to go to my friends house, कि मैं अक्सर अपने दोस्त के घर जाया करता था। I used to. Okay, so used to is used to show the action that has been frequently done in the past. So उसके लिए हम use का use करते हैं। And next is need. Need is used for necessity. Need का use हम किस लिए करते हैं? Necessity के लिए। Necessity के लिए use is आवश्यक है। Okay? तो necessity का use यहाँ भी है, यहाँ भी है। Okay? Then what is the difference where we use must or where we use need? तो हम कहाँ use करेंगे must का और कहाँ पर need का? तो let's see, देखते हैं। I must और just as we must eat food. ये हमने एक एग्जांपल लिखा था must का, अब हम need का करते हैं। I need money. Okay, I need money. What is the basic difference? तो इनमें basic difference क्या है कि हम यहाँ पर must है तो necessity के लिए यहाँ must को apply कर
आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, और अगर आप यहाँ पर नीड अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी ऑल्सो रॉन्ग। तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? हाउ दैट विल बी रॉन्ग? सो बिकॉज need is also a verb, main verb. It is also main verb. Okay, and must is always actually must जो है must. So you can see here, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर must है, तो यहाँ पर हमने main verb already यूज किया। But यहाँ पर अगर ये need जो है वो main verb के रूप में भी काम कर रहा है और as a model भी काम कर रहा है, but there is noun। यहाँ पर क्या है? अगर आप यहाँ पर must को अप्लाई करते हैं must money, so that will be no, or that this sentence has no sense। तो यानी इस सेंटेंस की कोई सेंस नहीं निकलेगी, so ये ऑटोमेटिकली अपने आप में गलत हो जाएगा। तो I need money यानी मुझे मनी की जरूरत है, so that is use of need, that is the use of need। तो need जो है अपने आप में एक मेन वर्ब भी है, and also that is also a modal, and in the same manner there is also a verb। there भी क्या है अपने आप में एक मेन वर्ब भी है, और also that it is also used as a modal, just as you have listened so many times this dialogue or a sentence that how dare you, how dare you यानी आपकी हिम्मत कैसे हुई। so dare shows courage, dare किसको शो करता है? courage को, हिम्मत को, साहस को शो करता है। ओके, so how dare you यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ओके, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले अगर हम WH वर्ड से शुरू कर रहे हैं तो उसके जस्ट बाद यहाँ पर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। ओके, तो मॉडल जो है dare ये हेल्पिंग वर्ब भी है, एंड इट इज आल्सो ये मेन वर्ब भी है। सो इट वर्क्स इन द टू सेंस, दैट एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड आल्सो एज अ मेन वर्ब। हाउ डेयर यू, तो यानी हमारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये डेयर जो है वो इंडिकेट करता है, शो करता है, एक्सप्रेस करता है करेज को, साहस को, हिम्मत को। ओके, सो आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड आल्सो लर्न lot of things, lot of new things from this video. So I would request you once again to subscribe my channel, My Digital School. Thank you guys, thanks a lot.